Hello student, in the video of this chapter working of institution, now we have to study the next topic, parliament. In the last videos we have discussed about needs for political institutions, decision makers, like that headings, but here we have to study about our parliament, that what is the task of our parliament, why parliament is necessary in a democracy, and what is the meaning of parliament, how many houses in our parliament, who is the leader of parliament, everything we have to read here in this heading. You see here that in the example of the office memorandum, do you remember the role of the parliament? Perhaps not, since this decision was not taken by the parliament. You might think that the parliament had no role in it, but let us go back to the story and see whether parliament figures in it. Let us recall the point made earlier by completing the following sentence. जो हमने इसके पहले ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था, जिसमें जनता पार्टी की सरकार ने वीपी सिंह के लीडिंग में जो मंडल कमीशन को जो गठित किया था और उसके बल पे जो बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण देने की बात की गई थी, उसमें पूरी की पूरी रोल किसकी रही, हमारे पार्लियामेंट की रोल थी या नहीं थी, इस बारे में बहस नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने बस उस चीज़ को पढ़ा। लेकिन ये अभी नीचे की जो 3 पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट विदाउट पार्लियामेंट, विदाउट आवर हाउस, इट इज़ नॉट इन हाउसेस इन पार्लियामेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू implement such type of recommendations. You see, the report of the Mandal Commission was discussed. Yes, this report was discussed in our parliament in Lok Sabha at that time, in the leading of the Prime Minister Mr. BP Singh, and in the presence of his cabinet ministry. Secondly, the President of India mentioned this in his, and after that in his voice, in his speech, the President of that time also brought this matter in the parliament in his statement. He also recommended to implement the Mandal Commission report in the country as soon as possible. And the third is the Prime Minister made and after that the Prime Minister made a plan, and according to the plan he tried to implement it in the country according to his plan, according to his themes. So this decision was not directly taken in the parliament, but parliamentary discussion on the report influenced the decision of the government. तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि जो डिसीजन है सीधे के सीधे पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है उस रिपोर्ट के आधार पर, शेप के आधार पर, डिसीजन के शेप के आधार पर इसको देखा जाता है। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन, और जो वे लाते हैं, क्या प्रेशर लाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ पे जैसे हुआ इस समय जो हमारे पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स थे उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाया कि आप मंडल कमीशन को रिकमेंड करिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों ने प्रेशर बनाया। और इफ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, and at that time this was also a challenge for the government. If the government could not implement it in the country, implement it in our rule and regulation, in our constitution, at that time this is not possible for the government to move ahead, because the representatives of
the backward classes at that time were united, and they decided to make a fall for the government without implemented the rule, the commission, Wendell Commission. Can you guess why? Recall what you read about the parliament in the earlier class and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision. So at that time you have read it about the parliament in your earlier classes, that the parliament have power to approve the cabinet's decision. जो भी उस सरकार की कैबिनेट का डिसीजन है उसको पार्लियामेंट के पास पावर होता है अप्रूव करने का, और चाहे तो उसको अप्रूव कर सकती है, चाहे तो उसको अप्रूव नहीं कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन आवर डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ elected representatives exercises supreme political authority on behalf of the India. In such a national assembly of elected representatives is called parliament. जो भी हमारी डेमोक्रेसी है, सारी डेमोक्रेसी में एक असेंबली होता है। इस असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में क्षेत्र के आपके चुने हुए जो सांसद जाते हैं, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर जाते हैं, जिनको वो जो वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, जिनको सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी मिला रहता है लोगों के तरफ से, लोगों को चुनकर अपने उस पार्लियामेंट्री एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जिसे पावर मिला रहता है। और इस तरह से इंडिया में एक नेशनल असेंबली होता है। जो इंडिया का नेशनल असेंबली है वो पार्लियामेंट ही है, जिसमें हमारे क्षेत्र से चुने हुए इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर जाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, देश के रूल रेगुलेशन में सहयोग करते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन स्टेट लेवल में जब आप देखेंगे तो स्टेट लेवल में इसे लेजिस्लेचर कहा जाता है या लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, जिसे बोलते हैं व्यवस्थापिका होती है। The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. It exercises political authority on behalf of the people in many ways. और इस तरह से जो बहुत से ऐसे नाम हैं डिफरेंट देशों की जो नेम है, वो ऐसे असेंबली को अपनी प्रत्येक डेमोक्रेसी में चाहते हैं। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। कैसे लोगों के बिहाफ में, अगुवाई में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है कैसे एक्सरसाइज करती है, काम करती है। यू कैन सी हियर इन दिस पेज पॉइंट नंबर 1, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। देश में रूल बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, जिम्मेदार होती है, अधिकारी होती है। This task of law making or legislation is so crucial that these assembly are called legislature. This task of law making, ये लॉ मेकिंग जो टास्क होता है या लेजिस्लेशन जो होता है इतना क्रूशल होता है कि असेंबली जो है वो लेजिस्लेचर कहलाने लगता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। इस पूरे संसार में जो पार्लियामेंट्स हैं वो नई लॉज, नए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं और फिर
चेंज एग्जिस्टिंग लॉज को भी जो पाए हुए जो वहाँ पे प्रेजेंट मौजूद जो वहाँ पे रूल है उसको भी चेंजिंग करते हैं और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक ए न्यू वंस इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। इन सम कंट्री लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फ्री। तो जो पार्लियामेंट अब होता है इसमें पूरे संसार में उस पर कंट्रोल उसी का होता है जो सरकार को चलाता है, अर्थात कह सकते हैं जो सरकार चलाता है उसी का पार्लियामेंट होता है, उसी का उस पर कब्जा रहता है, उसका उस पर कंट्रोल रहता है। इन सम कंट्री लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फ्री। और कुछ देशों में जैसे भारत की बात की जाए तो एक जो सपोर्ट है डायरेक्ट है और फुल है। Those who run the government can take decision any so long as they enjoy support of the parliament. जो लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं और फिर वे लोग लंबे समय तक इस पार्लियामेंट को सपोर्ट करने का भी इंजॉय कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दे हैव आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देम। इफ पार्लियामेंट इज टेकिंग गुड डिसीजन एट दैट टाइम दे raise their hand in the favor of that bill, and if there is any problem in that bill, at that time these members also oppose the bill in the parliament. थर्ड नंबर है पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। जो भी सरकार के पास धन है, संपदा है, उसको भी पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। इन मोस्ट कंट्री एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली इन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट। बहुत से देशों में ऐसा भी रूल है जो जनता का पैसा है उसको भी पार्लियामेंट से सैंक्शन करने के बाद ही हम खर्च कर सकते हैं। तो दीज ऑल द रूल्स आर ओनली गो इन द हैंड ऑफ आवर पार्लियामेंट, एंड विदाउट पार्लियामेंट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन condition, maintain structure powerful of a country.